Hello everyone, welcome to the Diligent Learners. In this video, we will be doing the topic fundamental duties. So first of all, we'll look at some questions and then we'll move on to the theory. Okay, so first question क्या है? Consider the following pairs. Provision in the Constitution of India stated under. अच्छा, ठीक है. So first क्या दिया है? Separation of judiciary from the executive in public services of the state. तो ये कहाँ पे मेंशनड है? इट इज़ इन द DPSPs. दिस इज़ करेक्ट. इट इज़ आर्टिकल 50 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना. नेक्स्ट है वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. दिस इज़ प्रेजेंट इन द फंडामेंटल ड्यूटीज़. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. फिर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, hazardous factories, fundamental rights. This is also correct. ठीक है, so according to me all three are correct. I'll just check the answer once. हाँ, all three are correct here. ठीक है, so this was a very simple question. Next देखते हैं. In the context of India, which one of the following is the correct relationship between rights and duties? First है rights are correlative with duties. अच्छा, in the context of India पूछ रहे हैं हमको, है ना. कोरिलेटिव नहीं है इंडिया में. ठीक है, सो राइट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ड्यूटीज़. ठीक है, सो दिस वॉन्ट बी करेक्ट. फिर राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटीज़ एंड ड्यूटीज़. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं. वील फाइंड द वन विच इज़ द मोस्ट करेक्ट आउट ऑफ द फोर. ठीक है, राइट्स नॉट ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन. दिस इज ऑल्सो incorrect. Duties, not rights, are important for the stability of the state. Again, this is also incorrect. ठीक है, so according to me the answer should be option B. A है आंसर. अच्छा, I do not think that it should be A. Rights are correlative with duties. I think the answer should be B, but let me just check in some other from some other source. Rights correlative with duties. ठीक है, यहाँ पे दिया है कि इट इज़ इंडीड कोरिलेटिव विद ड्यूटीज़. ठीक है, कोरिलेटिव में वो हो जाएगा कि दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, है ना. अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी नॉट बी करेक्ट, बट ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर एंड UPSC आर ऑल्सो गिवन दिस एज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो डू रिमेंबर दिस in future, because if they by chance repeat this question then you should be knowing the answer. Answer is rights are correlative with duties. ठीक है, so option A will be the correct answer in this case. ठीक है, so हाँ वही दिया है. ठीक है, हर जगह. So the answer will be option A. Next है, which of the following statements are true of the fundamental rights fundamental duties of a citizen? A legislative process has been provided to enforce these duties. This is wrong. ठीक है, they are correlative to legal duties. ये भी ऐसा कुछ तो है नहीं, है ना. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन डी. नाइदर वन नॉर टू इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सो वी हैव डन द मेजर क्वेश्चंस. अभी देखते हैं. देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज आर 11 मॉरल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस for each citizen aimed at promoting patriotism and upholding national unity. ठीक है, and it applies only to citizens. This is also important. You need to know this. कि fundamental duties applies only to the citizens of the country. ठीक है,
नेक्स्ट है, देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। सो फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, 51A का क्लॉज ए, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। ठीक है, उसके बाद में है ये ए था। सो ए से हाउ विल यू रिमेंबर दिस, ए विल बी रिलेटेड टू नेशनल एंथम। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। सो टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and respect the institutions where national flag and national anthem. ठीक है, then B है to cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. तो किसकी बात हो रही है इसमें, प्राइमरली इट इज़ बीइंग टॉक्ड, द नोबल आइडियल्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। ठीक है, तो बी में नोबल, ठीक है, इसको ऐसे लर्न कर लो, बी नोबल का बी एंड ये वाला बी। ठीक है, नोबल आइडियल्स की बात हो रही है इसमें। देन सी है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो SUI से सुई और सी दे राइम, है ना, राइमिंग है दोनों, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, सी सुई। ठीक है, सो टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है डी, डी से डिफेंड। ठीक है, सो टू डिफेंड द country and render national service when called upon to do so. Then E से क्या है, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversity. ठीक है, तो ये brotherhood के बारे में है, and to renounce practices which are derogatory to the dignity of women. ठीक है, वुमन और ब्रदरहुड एक साथ रखा है इसमें, है ना, एंड ई से इसको डिनोट करा है। तो इसको ऐसे कर लो कि वुमन में भी ई होता है ना, और ब्रदरहुड में भी, ब्रदर में भी देयर इज़ एन ई। ठीक है, दैट इज़ ऑल दैट आई एम एबल टू कम अप विद राइट नाउ। ठीक है, तो ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस ई, नहीं तो बस ऐसे लर्न कर लो कि कॉमन ब्रदरहुड एंड वुमन का एक ही क्लॉज में है। नेक्स्ट है एफ, दैट इज़ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। ठीक है, वही कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए दिया है एफ में। ठीक है, सो एफ से वैसे और क्या लिंक कर सकते हो उसको। ठीक है, फूड, देखो एफ से क्या होता है, फूड, और फूड इज़ अ वेरी ग्रेट मार्कर ऑफ अ प्लेसेस कल्चर। ठीक है, फूड डिपिक्ट्स के क्या कल्चर है किसी रीजन में। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, एफ से फूड और उससे कल्चर। ठीक है, सो दिस फंडामेंटल ड्यूटीज रिगार्डिंग सेविंग एंड वैल्यूइंग द कल्चर ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है जी, जी से क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. So this is regarding the environment. ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, जी, जी से क्या होता है, ग्रीन, है ना, सो इन्वायरमेंट इज़ ग्रीन। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, इन्वायरमेंट और ग्रीन को यू कैन कनेक्ट एंड देन रिमेंबर दिस, जी से ग्रीन और उससे इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है एच, एच का है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ठीक है, तो इसको ये ह्यूमनिज्म का एच ले लूँ एंड यहाँ भी एच है, सो एच से ह्यूमनिज्म। ठीक है, तो टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देन यू हैव आई, आई से क्या है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, है ना, सो टू अवॉइड वायलेंस वगैरह के बारे में है इसमें। सो वी आई, वाई और आई, these are rhyming, so that way you can remember this.
नाउ जे से क्या है, टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल फील्ड्स, ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड collective activity, so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. ठीक है, सो प्राइमरीली किस चीज़ के बारे में, इट इज़ टू अचीव एक्सीलेंस. ठीक है, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस जे. इसको बस ऐसे लर्न कर लो कि ये थोड़ा सा वैसा वाला, ये वाला जो फंडामेंटल ड्यूटी है, इट इज़ अ बिट प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर. ये बता रहा है लोगों को कि कैसा होना चाहिए किसी को, है ना. सो किसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्राइब या किसको वी ट्राई टू इंस्पायर, इट इज़ जनरली द जूनियर पीपल, है ना. जूनियर या छोटे लोग, बच्चे बच्चे जो होते हैं, उनको वी ट्राई टू इंस्पायर देम कि दे शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस और ये सब चीज़ें. ठीक है, दोज आर द पीपल हुम वी नॉर्मली एडवाइस. ठीक है, तो हम लोग किसको एडवाइस करते हैं नॉर्मली, जूनियर्स को. ठीक है, सो जूनियर्स से जे हो जाएगा, है ना. एंड इसमें क्या दिया है, इट इज़ एन एडवाइजरी काइंड ऑफ अ फंडामेंटल ड्यूटी wherein they have asked the citizens to strive towards excellence, है ना, to work towards achieving excellence in all spheres. ठीक है, नेक्स्ट है के. नाउ दिस was added by the 86th constitutional amendment act. इसमें क्या दिया है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वॉर्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 years. ठीक है, तो 6 and 14 years के बीच में एजुकेशन से रिलेटेड है ना. सो अगेन दिस, इसको कैसे कि दिस इज़ द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी एंड इट वाज एडेड बाय द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस कि एजुकेशन से रिलेटेड है के. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लिंक इट इन दिस मैनर कि के से क्या होता है, काइट. तो काइट उड़ाने के बाद बच्चे पढ़ने बैठ जाते हैं. ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. या पढ़ने के बाद दे गो एंड फ्लाई काइट्स. ठीक है, ऐसे करके यू कैन रिमेंबर दिस. सो वी हैव डन ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन देख लेते हैं. सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मॉरल एंड सिविक ऑब्लिगेशंस. दे आर नॉट कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़ एंड दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल लाइक लीगल ड्यूटीज़. ठीक है, ये भी पता होना चाहिए हमको कि लीगल ड्यूटीज़ आर इन्फोर्सेबल वेयर एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट. ठीक है, नाउ दे आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, there is no explicit list of fundamental duties in major democratic constitutions except Japan. ठीक है, so it is only Japan where there is a proper list of fundamental duties. बाकी किसी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज़ नॉट प्रेजेंट. ठीक है, नाउ जो 42nd अमेंडमेंट था, इट हैड एडेड पार्ट 4A एंड 51A which is the fundamental duties, and this was added based upon the recommendations of the Swaran Singh committee. ठीक है, during emergency. Now 10 fundamental duties were originally added, but the 11th one was added via the 86th constitutional amendment act. ठीक है, now, there were certain other recommendations which were made by the Swaran Singh committee, such as making the duty to pay taxes and penalty for non-compliance of duties as well, but these were not incorporated in the constitution. Okay, so this is not an important fact. Next है key features. So fundamental duties are moral and civic obligations, है ना, as we already know. ठीक है, दे आर नॉट कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़ एंड दे आर नॉट इन्फोर्सेबल लाइक लीगल ड्यूटीज़ एज वेल. इन्फोर्सिबिलिटी क्या है, दे आर नॉट जस्टिशिएबल जस्ट लाइक पार्ट 4. फिर पार्लियामेंट इज़ ऑथराइज टू इन्फोर्स सूटेबल लेजिस्लेशन एंड देयर इज़ नो डायरेक्ट प्रोसेस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वो तो नॉर्मल चीज़ है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी थिंग बेसिकली. So that is what is mentioned here. So this is not as important. Next है implementation of fundamental duties as given by the Verma Committee of 1999. So a Verma Committee was formed. उन्होंने बोला था कि
there should be certain acts which should look after कि मतलब some of the fundamental duties are being enacted. ठीक है. So for example जैसे हमारा जो first fundamental duty है wherein we have been asked to respect the national flag, national anthem ये सब, उसके लिए there is an act which is the Prevention of Insults to National Honor Act of 1971. ठीक है. Then you have एक जो सेकेंड इसके नेक्स्ट वाला, नहीं नेक्स्ट वाला नहीं, दिस इज ई, प्रमोशन ऑफ हार्मनी एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड. ठीक है, तो ये है क्लॉज ई, 51A क्लॉज ई. सो इसके लिए देर इज एन एक्ट दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 विच प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट socially and educationally economically backward classes, and there's also the representation of people's act of 1951. ठीक है. देन यू हैव एन एक्ट फॉर अपहोल्डिंग सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी जो क्लॉज सी में बोला है. उसके लिए देर इज़ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967. देन इंडियन पीनल कोड है ना, उसमें भी देर आर वेरियस रेलिवेंट प्रोविजंस एज वेल. Then in order to protect environment and wildlife we have the Wildlife Protection Act and the Forest Conservation Act as well. ठीक है. सो ऐसे एग्जैक्ट इसी के लिए बना है ऐसा नहीं है, बट दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल के हाउ दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, ये डू रिमेंबर दिस वन, इसका ईयर अच्छे से याद रखना. प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट क्या है, 1971 का है. 1971 में और क्या हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन. ठीक है. सो उससे लिंक करके कर लूँ कि इंडिया हैड वन द इन वॉर एंड हैड बीन सक्सेसफुल इन लिबरेटिंग बांग्लादेश. ठीक है. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स. सो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स. ठीक है. सो इसमें क्या है, देयर इज़ वी प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी और ये सब है ना, आर्टिकल 21 में दिया है. और पार्ट 4A में क्या दिया है, दे आर इम्पोजिंग मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑन द सिटीजन्स. ठीक है. सो दे आर, वैसे तो अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दिस गोज़ अगेंस्ट आर्टिकल 21 दैट इज़ इंडिविजुअल लिबर्टी, बट रादर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर. ठीक है. नाउ दीज ड्यूटीज एक्ट एज रिमाइंडर्स दैट राइट्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना. मॉरल लिमिटेशन ऑन रिकलेस एक्सरसाइज ऑफ राइट्स भी है ये एक, एंड दे आर बेसिस, दे फॉर्म अ बेसिस फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थ्रू लॉ. ठीक है. और यहाँ पे ऐसे एक समरी दिया है कि फंडामेंटल राइट्स आर रिगार्डिंग इंडिविजुअल फ्रीडम, DPSPs are regarding the duties of the state, and fundamental duties are regarding the citizens' social responsibilities. ठीक है. So that is all for fundamental duties.